Bismillahirrahmanirrahim. So, the subject name is Engineering, Economics, and Management. So, until now, we have discussed the engineering economics portion, and from now onward, we will discuss the management. Okay, so this is our first lecture about the management. So, today we will discuss some fundamental concepts of the management. See, मैनेजमेंट कब होगा या मैनेजमेंट जो है वो क्यों होगा, ठीक है. सो ऑल्सो यू पीपल may have heard about the organization, administration, and management. Okay, we have these three terms which are used interchangeably, ठीक है. That what is organization, what is administration, and then what is management. Because अगर आपके पास एक organization ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट हो लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो फिर वो जो है वो नहीं चल सकता. Similarly, if you have organization and management and if you don't have the administration, again वो successful नहीं होगा. And if you have organization and administration but if you don't have management, again it will be not successful. So ये तीन जो है, these three are the pillars of a project or achieving an objective. Okay, that first you will have an organization, then under the organization you will have administration and management. Okay, so we will discuss the difference between these terminologies. Also we will discuss the functions of management and the principles of management, and we will discuss the principles of the good administration. Okay, you people may have heard about the एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट सर्टन ऑर्गेनाइजेशन कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है एडमिनिस्ट्रेशन गुड है या इस ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन बैड है, ठीक है, जो एडमिन्स ऑफिसर्स होते हैं. सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन की, जब सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जब हम एक पार्टी में चले जाते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि मैनेजमेंट जो था वो ठीक नहीं था या मैनेजमेंट जो था दैट वाज वेरी गुड, ठीक है. सो जी, एक एडमिनिस्ट्रेशन टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं और एक मैनेजमेंट यूज करते हैं. सी, फर्स्ट यू विल हैव एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, देन अंडर द ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू steps, yeah, we have two pillars. One is the administration and second one is the management, ठीक है. The organization is the, simply we can say that organization is a group of people which are working to achieve a single objective. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कब वजूद में आ जाता है अगर इस तरह हम कह सकें तो you will have some resources. Okay, you will utilize that resources और आपने अपने लिए एक गोल सेट किया होगा, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा कि मैंने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है by utilizing these resources. Now a number of people will be involved, a group of people will be involved which will be working toward the achievement of that goal while utilizing the available resources. So that group of people is called organization. अब उसमें डिफरेंट स्टेज के लोग होंगे ना, लेकिन ओवरऑल द ग्रुप ऑफ पीपल विच आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज. सी, गोल जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉमन होगा और सब लोग जो काम करेंगे वो उस गोल को अचीव करेंगे, ठीक है. सो दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी के एग्जांपल ले लें तो यूनिवर्सिटी में डिफरेंट लेवल के लोग होते हैं, ठीक है, वाइस चांसलर से लेकर लोअर क्लास पोस्ट तक. उसमें टीचर्स भी हैं, चेयरमैन भी हैं, डीन्स भी हैं, ठीक है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी हैं.
ठीक है, क्लर्क्स ऑफिसेज भी हैं। सो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करना, इंजीनियर्स प्रोड्यूस करना, तो ये ऑब्जेक्टिव है। नाउ ये सारे लोग जो है ये कलेक्टिवली काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग to achieve a specific objective while utilizing the available resources। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन होगा। सी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन द वर्क इन सच अ वे विद individual or groups that duties form provide best possible application of available efforts। See, we can say that utilizing the available resources। so इस resources में फिर नॉलेज भी आ जाता है, एफर्ट्स भी आ जाते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है, सो अवेलेबल एफर्ट्स को, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना इंडिविजुअली और इन ग्रुप फॉर्म to achieve the specific objective। So this group of people is called organization। Okay, then in organization we have two level of people। one is called the administration and second one is called the management। ठीक है, सो जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो ओनर्स होते हैं। ठीक है, वो टॉप लेवल के लोग होते हैं, वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो गोल्स को स्पेसिफाई करते हैं कि हमने ये काम करना है, हमने ये गोल अचीव करना है, हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, किस तरह अचीव करना है। सो द डिसीजन मेकर्स, द पॉलिसी मेकर्स, द टॉप लेवल पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड द एग्जीक्यूटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे? पॉलिसी बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे, फिर प्रैक्टिकली उस पे काम करना, उन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, उन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। दैट ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। समझ आ गया? सी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होगा which is a group of people which is trying to achieve a single objective by utilizing the given resources। फिर ऑर्गेनाइजेशन में एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन होगा which are the decision makers, policy makers, गोल सेट करते हैं वो लोग। और एक होता है हमारे पास मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजर क्या करते हैं? वो उस गोल को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव करते हैं। ये मैनेजमेंट का काम होगा। ठीक है, गोल को सेट करना, दैट इज द जॉब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना, दैट इज द जॉब ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप देखें अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ना हो तो प्रॉपर गोल सेट नहीं होगा, डिसीजन या पॉलिसी जो है वो प्रॉपर नहीं होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चल सकता। सिमिलरली अगर आपका मैनेजमेंट ठीक ना हो, अगर आप बेस्ट पॉलिसी डिफाइन कर ले, बेस्ट गोल सेट कर लें, लेकिन आप उसको मैनेजमेंट आपका ठीक ना हो, आप उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव ना कर सके, सो अगेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चल सकता फिर। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन और बेस्ट मैनेजमेंट जो है दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर हो गई ये तीन टर्मिनोलॉजीज? यस सर। जी, अच्छा। अब देखिए वी विल डिस्कस वन बाय वन अगेन ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। सो वी कैन से दैट अगेन, सी एक हमारे पास लीडरशिप है ना। ठीक है, जो एग्जैक्टली वो ओनर्स होते हैं, या लीडरशिप जो है ये सिंगल पर्सन होगा। लीडरशिप के अंडर हमारे पास फिर एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं और एक मैनेजमेंट होता है। ठीक है, या लीडरशिप जो है दैट दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन एज वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जाहिर बात है अगर एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट है तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है वो आपका लीडर होगा। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने जो डिस्कस की तो लीडरशिप हमने एडमिनिस्ट्रेशन में ही डिस्कस की, लेकिन ये लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन से आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं।
ठीक है। नाउ जो ऑब्जेक्टिव आपका है या जो गोल है वो कब सक्सेसफुल होगा? नाउ इट नीड द इफेक्टिव लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखें इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन सेंटर है, दैट इज दिस वन. सो द मोस्ट इफेक्टिव गोल विल बी मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट अगर आपके पास ये रीजन जो है ये ज्यादा हो, मीन उनकी दरमियान जो इंटरसेक्शन है वो ज्यादा हो among द लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. ठीक है। सपोज अगर आपके पास मैनेजमेंट हो और एडमिनिस्ट्रेशन हो लेकिन आपके पास लीडरशिप ना हो, सो अगेन योर ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी सक्सेसफुल. ठीक है। सो ये तीन जो है दीज मस्ट बी एट हायर लेवल if you want to achieve your goal or objective efficiently and effectively. ठीक है। हमने सुना हुआ है ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, उनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, उनकी डिसीजंस ठीक नहीं है. ठीक है। फिर हमने ये भी सुना हुआ है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है लेकिन उनका मैनेजरियल स्टाफ ठीक नहीं है, वो प्रॉपरली पॉलिसी को और डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. ठीक है। लीडर ठीक होता है लेकिन उनके मैनेजमेंट ठीक नहीं होता, या मैनेजमेंट ठीक होता है लेकिन उनका लीडर ठीक नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटर ठीक नहीं होता. ठीक है। सो एक गोल और एक ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली अचीव करने के लिए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बेस्ट होनी चाहिए, ये गुड होनी चाहिए, उनकी अपनी प्रिंसिपल है, वी विल डिस्कस. अच्छा, so as we have discussed that organization is the our group of people with idea and resources working toward a common goal. See, if you have idea, then based on that idea you will set a goal. ठीक है कि इस आइडिया की बेस पे मैंने ये गोल अचीव करना है while utilizing these resources. So now you have the idea, you have the resources, now you will have to work to achieve that goal. तो उस गोल को आप किस तरह अचीव करेंगे? अगेन अ ग्रुप ऑफ पीपल विल बी रिक्वायर्ड, डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल विल बी रिक्वायर्ड. So that group of people is called organization. Among that group of people, there will be policy maker, there will be decision makers, there will be laborers, there will be managers, there will be technical staff. Okay. So the decision maker and the policy maker is then called the administration, and the labor, technical staff, managerial staff, executors, they are called the management. Okay. So organization is a systematic arrangement of people brought together to accomplish some specific purpose. Again, that specific purpose will be your objective, that will be your goal. Okay. So again we have some systematic arrangement, like we have the top level management, then the middle management, then the lower management, then again in the lower management we have the technical staff, we have the laborers, we have the helpers. So that is the systematic arrangement. Okay. So that systematic arrangement of people which is utilizing the ideas and resources to achieve a common goal, that is called organization. Okay. So organization is a network or a structure or a relationship among the individual. As we have discussed that organization is a group of people. So again अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होगा, उनके दरमियान एक बॉन्ड होगा. ठीक है। इस तरह नहीं है कि वो इंटरलिंक नहीं होंगे. ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होते हैं और एक ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है. ठीक है। तो इसको पेवरली हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और इसको हम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं. जो प्रैक्टिकली ऑपरेटिव लोग होते हैं, एग्जीक्यूटर्स होते हैं. ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होते हैं, दे आर डिसीजन मेकर, दे आर पॉलिसी मेकर्स. ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रुप ऑफ पीपल working together in a structured situation for a common objective. And then we have the different activities in an organization. ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन तो एक जनरल टर्म हो गया ना कि इसमें अ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, उसमें मैनेजमेंट भी होगा. अगेन सपोज इफ वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट,
ठीक है, अगर एक कंपनी है वो किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं ना. सपोज एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है विच इज प्रैक्टिकली प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, मशीनरी ऑपरेट होते हैं, रॉ प्रोडक्ट यूटिलाइज करते हैं, और एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं. सो दैट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी. उसमें डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होंगे, उसमें लेबर्स इन्वॉल्व होंगे, प्रोफेशनल टेक्नीशियंस इन्वॉल्व होंगे, रिसोर्स उसमें यूटिलाइज्ड होंगे. ठीक है, तो ये ऑपरेशनल एक्टिविटी है. फिर एक हमारे पास मार्केटिंग एक्टिविटी होती है. ठीक है, कि आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसको आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किस तरह आप उसको सेल करेंगे मार्केट में. सो अगेन उसके लिए डिफरेंट लोग रिक्वायर्ड होते हैं, उसके उसके लिए बिजनेस माइंड के लोग रिक्वायर्ड होंगे. ऑपरेशन के लिए आपको प्रोफेशनल और टेक्निकल और लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे. मार्केटिंग के लिए आपको बिजनेस माइंडेड मार्केटर्स रिक्वायर्ड होंगे. और एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए फंड कहां से आएगा, फिर वो फंड जो है आप किस तरह रिकवर करेंगे प्रोडक्ट की सेलिंग से. ठीक है, सो अब अगर हम जनरलाइज कर दें, सो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है विच इज अ जनरल टर्म, which is a group of people which is working together to achieve a common objective of the organization. Now, in this organization, we have the administration and we have the management. ठीक है, so now administrations are the owners, are the top level people which are making the decisions, which are making the policies, which are setting the goals. ठीक है, which are defining the resources utilization. And in management, then we have the three categories: operational management, marketing management and finance management. फिर हर एक्टिविटी के लिए अपना एक मैनेजर होता है. अगर आप लोगों ने सुना हुआ है ना, अक्सर जॉब आ जाते हैं तो उसमें लिखा होता है क्या, ऑपरेशन मैनेजर रिक्वायर्ड है, या मार्केटिंग मैनेजर रिक्वायर्ड है, फाइनेंसिंग मैनेजर रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो फिर उनका डिफरेंट जॉब होता है और उनकी अंडर डिफरेंट लोग होते हैं. ठीक है, so as we have discussed, then this group of people is called organization, because all people are doing work to achieve that required goal, that required objective. ठीक है, so that is organization. Clear हो गया organization? यस सर. जी, यस सर. आपके माइंड में अगर कोई आइडिया है या अगर आप कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं तो यू पीपल कैन शेयर अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके माइंड में क्या है. जी हरीश. जी नूर इस्लाम. सर किस बारे में शेयर करने हैं? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके माइंड में क्या है. ये क्वेश्चन तो मुझे पहले पूछना चाहिए था ना, लेकिन अब आप भी शेयर कर सकते हैं कि पहले आपके माइंड में क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. सर यही था कि इस तरह कोई कंपनी होती है जो इस तरह किसी को हम कोई काम देते हैं ना किसी कंपनी को, तो इसी तरह जो कंपनी के जो लोग होते हैं वही सारा ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं. अच्छा. जी सर. ना ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जैसा हमने डिस्कस की ना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रुप ऑफ पीपल है, फिर उसके अंडर मैनेजमेंट होगा और एडमिनिस्ट्रेशन होगा. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन कि व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन. सो मैनेजमेंट इज working with people to achieve the objectives effectively and efficiently. ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑब्जेक्टिव को सेट किया होगा ना, अब प्रैक्टिकली उसको अचीव करना, दैट इज द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट पोर्शन. नाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव effectively and efficiently, that will be called the management. ठीक है, फिर उसमें जो लोग होते हैं ना उसमें मैनेजर्स होंगे और डिफरेंट टेक्निकल लोग होंगे, लेकिन अचीविंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दैट इज कॉल्ड द
मैनेजमेंट। ठीक है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं टू डू द राइट जॉब एट द राइट प्लेस बाय राइट पीपल इन द राइट टाइम। ठीक है, कि सही जॉब के लिए आप सही पीपल को यूज कर लें सही टाइम पे और सही जगह पे, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इस तरह नहीं है कि मैकेनिक की जगह आप कोई और टेक्नीशियन यूज कर ले और इलेक्ट्रीशियन की जगह आप मैकेनिक यूज कर लें, और समझ आ रहे हैं? ठीक है, टू डू द राइट वर्क एट द राइट प्लेस बाय राइट पीपल इन द राइट टाइम, दैट इज द बेस्ट डिफिनीशन ऑफ द मैनेजमेंट। आप राइट टाइम पे राइट पीपल को राइट जगह पे राइट वर्क के लिए यूटिलाइज कर लें, सो ये बेस्ट मैनेजरियल स्किल होता है। ठीक है, योर राइट पीपल इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, सो आपका जो गोल होगा, जो अचीवमेंट होगा, वो इफेक्टिव एंड इफिशियंट होगा। ठीक है, ये मोस्ट इफिशिएंट ऑब्जेक्टिव का जो मतलब है, दैट इज गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट। मीन के कम से कम रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर लें और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप हासिल कर लें, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। सो if you are doing things right, if you are achieving the objective on time, so कम से कम रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है वो आएगा, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। ठीक है, यहां पे हम जो इफिशियंसी की डिफिनीशन करते हैं ना, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सो ये इफिशिएंटली का मतलब ये है to utilize the minimum resources and achieve the maximum objective। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो इफिशिएंट होगा। एंड इफेक्टिवनेस इज द कंप्लीटिंग द एक्टिविटी सो दैट द गोल इज अचीव्ड। इस तरह नहीं है कि आप एक्टिविटी कर ले और गोल अचीव ना हो जाए तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? सपोज अगर आप कोई चीज बनाए लेकिन सपोज वो काम नहीं कर रहा, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, आपने कम से कम रिसोर्सेज यूटिलाइज किए हुए हैं, वो इफिशिएंट हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 रिसोर्सेज है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो यूटिलाइजिंग द लीस्ट रिसोर्सेज एंड अचीविंग the maximum amount of objective या maximum amount of goal, that will be called the efficient, yeah, that will be called the efficiency. In achieving the organizational goal by completing the activity, that will be the effectiveness. ठीक है, now again if we have these resources, human resources में हमारे पास different लोग होंगे, लेबर्स है, different levels के स्टाफ्स हैं। Then we have the physical resources, we have the buildings, the machineries, other equipments, and we have the financial resources. So in management, actually, we are combining these resources to attain the organizational goal. अब suppose अगर आप objective utilize कर लें और आप जो है एक product produce कर लें, कम से कम रिसोर्सेस से आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लें, वो इफिशिएंट होगा। लेकिन सपोज अगर वो अपना रिक्वायर्ड पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते तो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, सो जो गोल आप अचीव कर लें ना, तो वो रिक्वायर्ड जिस काम के लिए आपने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, अगर वो उसको प्रॉपर कर रहा है, सो वो इफेक्टिव होगा। सो नाउ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने रिसोर्सेस को राइट टाइम पे, राइट जगह पे और राइट एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज करने होंगे। सो दिस डूइंग राइट वर्क एट राइट प्लेस बाय राइट पीपल इन द राइट टाइम, दिस सेंटेंस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, so if you are betterly managing your resources,
सो देन देयर विल बी बेटर कंट्रोल, उसमें वेस्टेजेस नहीं होंगे, उसमें करप्शन नहीं होगा, ठीक है, एंड देयर विल बी इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है इफेक्टिव है एंड इफिशिएंट है, देन द कस्टमर्स विल बी हैप्पी, मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है वो कम्पिटिटिव होगा, ठीक है। शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम्स, ठीक है, इफ यू आर यूटिलाइजिंग द राइट पीपल इन द राइट प्लेस, तो फिर ऑब्जेक्टिव का अचीवमेंट जो है वो क्विक होता है, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह हमने डिस्कस की ना, अगर आपका ऑब्जेक्टिव इफिशिएंट है, मतलब ये है कि यू हैव यूटिलाइज द मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज, सो कास्ट कम होगा। मैनेजमेंट जब ठीक ना हो तो फिर कास्ट बढ़ जाता है, ठीक है। यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। Higher quality and increased reliability, again, see, keep in mind the definition of the management, achieving the goal effectively and efficiently. तो जाहिर बात है अगर आपका गोल इफेक्टिव और इफिशिएंटली अचीव हो जाए, उसका क्वालिटी हाई होगा, रिलायबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, लाइफ टाइम उसकी ज्यादा होगी, प्रॉफिट जो है आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सपोज अगर एक प्रोडक्ट को आप इफिशिएंटली मैन्युफैक्चर कर लेना, तो कम से कम रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड होंगे, और मार्केट में सपोज अगर उसका प्राइस फिक्स है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप प्रॉपरली मैनेजमेंट पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ना करें तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा, मार्केट में प्राइस फिक्स है तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा फिर, ठीक है। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन, इफ यू आर यूटिलाइजिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, तो फिर वो आपकी जो स्टॉप्स हैं वो भी खुश होते हैं फिर, ठीक है। एक बंदा जो है वो दूसरी बंदे का काम नहीं करता, वो कहता है ये मेरा फील्ड ही नहीं है, मेरा जॉब ही नहीं है, ठीक है। सो इंटरनल कोऑर्डिनेशन कब बेटर होगा, इफ यू आर यूटिलाइजिंग द राइट पीपल इन द राइट प्लेस एंड इन द राइट टाइम। इस तरह नहीं है कि मॉर्निंग ड्यूटी वाला बंदा जो है उससे आप नाइट ड्यूटी ले ले, अगेन वो खुश नहीं होगा फिर, ठीक है। सो अगेन, टू डू द राइट वर्क at the right place by right people in the right time, so then there will be better internal coordination, there will be high profit margin, there will be lower cost, there will be better control on the resources, ठीक है, and also there will be less stress among the workers, ठीक है। सो हर एक जो हम यहाँ पे डिस्कस करें ना, आप अपने माइंड में रखिए, कल आप जो फील्ड वर्क में जाएंगे तो मैनेजमेंट जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, इसको देखें। सपोज इफ देयर इज नॉट प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना हो तो क्या होगा, ठीक। सपोज एक कस्टमर को एक प्रोजेक्ट चाहिए, उसने आपको एक्सप्लेन कर दी कि मुझे ये चीज चाहिए, दिस इज व्हाट द कस्टमर एक्सप्लेन, ठीक है, कि कस्टमर ने आपको एक्सप्लेन कर दी, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन कर दी कि मुझे इस तरह एक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। नाउ सपोज कस्टमर प्रैक्टिकली तो ये चीज नहीं है ना, वो एक्सप्लेन करेगा ना कि मुझे इस तरह दरख्त के साथ ये 2 वायर्स लगाएं, इसके ऊपर ये 3 स्टेप्स लगाएं, मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कस्टमर एक्सप्लेन्ड इट, दिस इज व्हाट द कस्टमर नीड, ठीक है। नाउ हाउ द प्रोजेक्ट लीडर अंडरस्टूड इट, प्रोजेक्ट लीडर ने किस तरह अंडरस्टूड किया कि उसको क्या चाहिए, उसने ये अंडरस्टूड कर दिया। नाउ अगेन देयर इज नॉट अ प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ जो डिजाइनर होते हैं, डिजाइनर ने इस तरह डिजाइन किया कि कस्टमर को इस तरह की चीज चाहिए, फिर बीच में जो प्रोग्रामर्स होते हैं, सपोज प्रोग्रामर्स ने इस तरह उसको प्रोग्रामिंग उसकी इस तरह की, ठीक है। और जो बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं ना, जो मार्केटर्स होते हैं, उन्होंने उसको इस तरह एक्सप्लेन कर दी कि हम इस तरह चीज प्रोड्यूस करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं होता, ठीक है। व्हाट ऑपरेशन इंस्टॉल मीन, एक्चुअली उन्होंने क्या इंस्टॉल कर दी, और कस्टमर से बिल किस चीज की ली, जो बिलिंग करते हैं ना, अमाउंट जब
आप उसको दे देते कि इस पे इतना खर्चा आया हुआ है, तो आप करते कि हमने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, इस तरह किया है, ये किया है, वो किया है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर बिलिंग द कस्टमर एंड हाउ इट वाज सपोर्टेड, मीन देयर वाज नथिंग। और कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए था, ये उसके माइंड में ये था, उसको ये चाहिए था, उन्होंने एक्सप्लेन ये कर दी, प्रोजेक्ट लीडर ने इस तरह अंडरस्टैंड किया, प्रोग्रामर ने इस तरह लिख दिया, बिजनेस कंसल्टेंट और मार्केटर ने इसको इस तरह डिस्क्राइब किया, पैसे उन्होंने इस तरह ली, और एक्चुअली उन्होंने ये चीज दे दी। सो मतलब क्या है कि इसमें प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं था, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकर्स, प्रॉपर स्टेज के लोग इन्वॉल्व नहीं थे कि वो प्रॉपर आइडिया ले लेते, उसको उसके ऊपर प्रॉपरली थिंक करते, उसके लिए रिसोर्स जो है डिफाइन करते, फिर उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते, ठीक है। सो दिस इज द रीजन that if there is not a proper and good project management involved in an organization, then this will happen, ठीक है। So we can say that again that management is the professional and consciousness management that is critical to a successful outcome. Okay? Professional and conscious management is critical to a successful outcome. If you properly manage an activity, it will give you a successful outcome. You can see here in this picture. Now there are a number of things are involved. Objective क्या है इसका आपके ख्याल में, इसका गोल क्या है, इस बंदे का क्या गोल है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सर ये जो चीज है ना, इसकी तरफ इसने हाथ बढ़ाया है, इसको पकड़ना चाहता है। नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्या है, क्या कर रहा है ये बंदा? अली रजा सर ये चीजें बना रहा है सर, ये जो डिस्क थी ये। आपने कोई कोक स्टूडियो नहीं देखी? सर ये ड्रम्स है सर, वो ड्रम्स वगैरह होते हैं ना, उस तरह की। हाँ। सर ये झुनझुना बजा रहा है सर। अच्छा ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? एक सुरीली साउंड प्रोड्यूस करना ना, बेस्ट साउंड प्रोड्यूस करना, ऑब्जेक्टिव वही है। तो वो क्या करेंगे, राइट टाइम पे राइट ड्रम को बजाएंगे ना, तो फिर प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस होगा। सो एट अ टाइम, इसका मतलब यह है कि एट अ टाइम आपने नंबर ऑफ एक्टिविटी करनी होंगे, लेकिन प्रियोरिटी पर आपने करनी है कि अब आपने कौन सी एक्टिविटी करनी है, नेक्स्ट आपने कौन सी एक्टिविटी करनी है, नेक्स्ट आपने कौन सी एक्टिविटी करनी है, कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो इफेक्टिव आ जाए, एफिशिएंट आ जाए, ठीक है। तो अब अगर प्रोफेशनल बंदा नहीं है, प्रॉपर स्किल्स नहीं है, तो वो उससे ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस नहीं कर सकता इस चीज से, ठीक है। मीन राइट ड्रम को राइट टाइम पे और राइट पोजीशन पे उसको अगर ये प्रेस कर ले, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट आ जाएगा। इस पिक्चर का मतलब ये है कि इन मैनेजमेंट यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एट अ टाइम, और आपने उसको प्रोफेशनली और कॉन्शियसनेसली मैनेज करना है कि आपका आउटकम जो है, आपका ऑब्जेक्टिव जो है, आपका गोल जो है वो सक्सेसफुल हो, ठीक है। अगेन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग व्हाट यू हैव टू डू व्हाट यू वांट। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको हमने अचीव करना होता है, एंड वी हैव रिसोर्सेज, उसको हमने यूटिलाइज करना है। So management is process of using what you have and what you want. ठीक है, आप चाहते क्या है, आपके पास है क्या, तो आप जो चाहते हैं वो आपको अगर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए, तो आपने इन चीजों को, इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना होगा। सो दिस प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। Similarly, we have different types of the resources like people, money, time. एक प्रोसीजर्स होता है, एक स्किल्स होते हैं, एनर्जी होती हैं, मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं,
ठीक है। सो मेजरली हमारे पास 3 रिसोर्सेज होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्सेज, एक फिजिकल रिसोर्सेज और एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ये 3 तो मेन है। ये बाकी भी रिसोर्सेज हैं, टाइम और वर्क प्रोसीजर एंड एनर्जी एंड इक्विपमेंट, ये फिर सब कैटेगरीज में आ जाते हैं। लेकिन जनरली वी कैन से दैट वी हैव 7 कैटेगरीज ऑफ द रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को हमने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया हुआ है उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना है। ठीक है, गोल क्या होगा, डिफरेंट अब ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं ना कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज अगर पर्सनल एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका गोल क्या होगा, एंड गोल क्या होगा। अगर वो एक पर्सनल एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करता। ठीक है, वो प्रोडक्ट पे फोकस करेगा कि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले, लेकिन बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से उनका मतलब क्या है, उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, उनको ज्यादा इनकम मिले, उनका प्रोडक्ट जो है मार्केट में कम्पिटिटिव हो। सो अगेन इन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन गोल क्या है, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, मेंटेनेंस और ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका गोल भी यही होता है कि उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो मेंटेन रहे और वो ग्रो हो जाए। क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है, मैनेजमेंट कंसर्न्स होते हैं, प्रोफेशनल ओब्लिगेशंस हैं। ये बाज कंपनीज की प्रायोरिटीज क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज क्या होते हैं, वो अपने नाम को या उनका जो स्टेटस होता है, उनकी जो प्रोफिशिएंसी होती है, ठीक है, उनका जो एक लेवल ऑफ प्रोडक्ट होता है वो उनको खराब करने नहीं देते। है कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मेन गोल क्या होते हैं, प्रोफेशनल ओब्लिगेशंस होते हैं, सोसाइटल कंसर्न्स होते हैं। मोस्टली सोसाइटल कंसर्न जो है दिस कैन बी अ टाइप ऑफ दिस कैन बी गोल पर मोस्टली पर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोसाइटल कंसर्न होते हैं। अब है अगर इनसाइड उसमें कोई करप्ट पीपल इन्वॉल्व है वो तो अलग बात है, लेकिन एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या होता है, सोसाइटल कंसर्न्स होते हैं कि वो सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। वो उनका गोल प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, सो ये डिफरेंट गोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के। उनके पास रिसोर्सेज हैं तो उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना। नाउ दिस प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, it is a multi-purpose organ that manage business and manage managers and manage workers. See, मैनेजमेंट में डिफरेंट लोग होंगे ना, मैनेजरियल स्टाफ होते हैं, लेबर स्टाफ होता है। नाउ मैनेजिंग द मैनेजर्स एंड वर्कर्स टू मैनेज द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की फिर डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, बिजनेस मैनेजमेंट है, मैनेजर्स मैनेजमेंट है, वर्कर्स मैनेजमेंट है और वर्क मैनेजमेंट है। ठीक है, also we can say that management is the process of achieving goals and objective effectively and efficiently through and with the people. लोगों के साथ और लोगों से आपने ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है। ठीक है, बिकॉज विदाउट दी people you cannot achieve your objective. Also, management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals work together in groups to effectively and efficiently accomplish the selected aims. ठीक है, एम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा। अगेन मैनेजमेंट जो होते हैं दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन द पीपल। अगर आपके लोग जो है, आपके वर्कर जो है, आपके पीपल जो है वो ठीक है तो गोल इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। बिकॉज रिसोर्सेज तो खुद ब खुद यूटिलाइज नहीं होते ना, लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द पीपल व्हिच आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये डिफरेंट डिफिनीशंस हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय यूजिंग द मैनेजमेंट फंक्शन। अब ये कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में।
जिस तरह हमने डिस्कस की ना, इफ यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होगा, उस गोल को आप इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अचीव करते हैं तो इसको मैनेजमेंट कहते हैं। अब वो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली कब होगा? इफ यू प्रॉपरली प्लान द एक्टिविटी, यू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी, उसके लिए आप प्रॉपर लोग रिक्रूट कर ले, हायर कर लें, और ड्यूरिंग द वर्क आप उसको कंट्रोल कर लें, तो ऑब्जेक्टिव जो है इफेक्टिव और इफिशिएंट होगा। ठीक है, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि ऑब्जेक्टिव मस्ट बी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। तो वो कब होगा? when you properly plan the activity, when you properly organize the activity, when you hire the right people। स्टॉपिंग का मतलब क्या है कि राइट लोग आप यूज कर लें, और ड्यूरिंग द एक्टिविटी आप उसके ऊपर कंट्रोल रखें, तो ऑब्जेक्टिव जो है इफेक्टिव और इफिशिएंट होगा। मैनेजमेंट इज अ set of activity directed at an organization resources with the aim of achieving organizational goal in an efficient and effective manner। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफिनीशंस है उसकी मैनेजमेंट की। तो कब efficient होगा? when the resource utilization is minimum। effectiveness कब होगा? जब गोल अचीव हो जाए, मीन कम से कम रिसोर्सेस से अगर गोल अचीव हो जाए तो वो इफिशिएंट एंड इफेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब ये है कि कम से कम आप वेस्टेजेस कर दे रिसोर्स के, और ज्यादा से ज्यादा आप अटेनमेंट करते हैं, देन वी विल से दैट द गोल इज इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट क्या है। जी कामरान यस नबी, सर, यस सर। कामरान नबी। जी मुराद। यस सर, समझ आ गया सर। अच्छा, नाउ फंक्शंस क्या हैं मैनेजमेंट के? कि बीइंग अ मैनेजर, किसी भी एक्टिविटी का अगर आप मैनेजर हैं तो उसकी फंक्शंस क्या होंगे? ठीक है, सो इसको मैनेजरियल फंक्शंस कहते हैं। मैनेजरियल फंक्शंस, तो सबसे पहले जो फंक्शन है, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट ऑल मैनेजर्स परफॉर्म, आइदर इफ इट इज ऑपरेशनल मैनेजर, और इट इज बिजनेस मैनेजर, और इफ इट इज फाइनेंस मैनेजर, और मार्केटिंग मैनेजर। तो सबकी जो मेजर फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं। जिस तरह हमने स्टार्ट में कुछ एक स्लाइड में डिस्कस की ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन की 3 एक्टिविटी होती है। एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है, एक मार्केटिंग एक्टिविटी है, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। देन फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी वी हैव द डिफरेंट मैनेजमेंट स्टॉप। तो फिर उन मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले जो है उसमें प्लानिंग है, कि जो भी एक्टिविटी की आप मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, उसकी सबसे पहले आप क्या कर लें? प्लानिंग कर लें। प्लानिंग में क्या होता है? डिटरमाइन द रिसोर्सेज विच इज नीडेड फॉर द एक्टिविटी, कि इस एक्टिविटी के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। फर्स्ट आप इसको डिफाइन कर लें। सो डिटरमाइनिंग या डिफाइनिंग दीज रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। आल्सो डेली, वीकली और मंथली आपने क्या अचीव करना है उसको सेट कर लें। अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ना, 1 ईयर का, 2 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, तो आप डिफाइन कर लें कि 10 दिन में हमने क्या अचीव करना है, फिर 1 मंथ में हमने क्या अचीव करना है, 1 ईयर में हमने क्या अचीव करना है। इसको इसकी स्केड्यूलिंग कर लें। ठीक है, कि एट द एंड ऑफ दिस वीक हमने क्या अचीव करना है, ये प्लानिंग में आ जाता है ना। तो फिर आपने देखना होगा कि आइदर यू आर अचीविंग और नॉट। अगर आप अचीव कर रहे हैं तो आपने बेस्ट मैनेजमेंट किया है। सो प्लानिंग क्या है? डिफाइनिंग और डिटरमाइनिंग द रिसोर्सेज, scheduling the activity, mean daily, weekly and monthly base पे, mean to develop the work schedule। ठीक है, या selecting and deciding, see, focus on the terminologies। selecting and deciding मीन आप प्रैक्टिकल आप काम नहीं कर रहे, आप सिलेक्शन कर रहे, आप डिसीजन कर रहे, हाउ टू अचीव द फ्यूचर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, अगर एक एक्टिविटी के आप मैनेजर है ना, तो आपने उस एक्टिविटी को अचीव करना होगा। सो अगर आप बैठ जाए और आप डिसाइड कर लें, आप प्लान कर लें, आप सेलेक्ट कर लें कि उस एक्टिविटी को हम किस तरह अचीव करेंगे, तो जाहिर बात है आपने रिसोर्सेज को डिफाइन करना होगा, आपने स्केजुअलिंग करनी होगी। सो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स in selecting the best way of action for achieving the goal। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आपने डिसीजंस के दिए कर दिया, आपने स्केड्यूलिंग कर दी। नाउ यू विल हैव टू we can say that you will have to keep yourself prepare for the problems which will occur। मीन जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना, आपने उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। आपने अब ऑर्गेनाइजेशन करनी है कि ये एक्टिविटी होगी, फिर ये एक्टिविटी होगी, फिर ये एक्टिविटी होगी। अगर इसकी बेच में ये प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हमने इस तरह करना है। अगेन ये एक डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, also making sure your members about the rules and responsibilities। ठीक है, आपने तो डिसाइड कर दिया ना, अब आप हर एक को इंडिविजुअल जॉब दे दे कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन में फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट आपने प्लानिंग कर दी, फिर उसकी ऑर्गेनाइजिंग कर ले। मीन ईच एंड एवरी मेंबर को उसकी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड कर दें। मीन डिसाइड हु इज बेस्ट फॉर द गिवन एक्टिविटी। या अगर एक टास्क है, एक सब एक्टिविटी है, एक वर्क पैकेज है, तो उसके लिए कौन बेस्ट सुटेबल है। राइट पीपल को सेलेक्ट कर ले राइट एक्टिविटी के लिए, और टीम मेंबर को टास्क असाइन कर ले। ठीक है, assigning the activities, deciding about the people for the activity, understanding the members about the rules and responsibility, ये organizing में आ जाता है। फिर ठीक है, deciding the activity which will be needed to reach the objective। So organizing is the process of allocating and arranging the work, authority and resources। ठीक है, कि मीन हर एक की अथॉरिटी आप डिफाइन कर लें, उनको आप रिसोर्सेज दे दें, और उनको आप कह दें कि आपने ये काम करना है विद इन दिस लिमिटेशन। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। स्टॉपिंग है, स्टॉपिंग जो है दैट इज हायरिंग ऑफ पीपल होता है ना, कि आप लोग हायर कर ले, आप लेबर ले ले, आप टेक्निकल पीपल ले लें, आप जो है प्रोफेशनल लोग हायर कर ले, इसको स्टॉपिंग कहते हैं। उनकी इंटरव्यूइंग, सिलेक्शन। ठीक है, इंटरव्यूइंग एंड सेलेक्टिंग द पोटेंशियल एम्प्लॉइज फॉर द रिक्वायर्ड जॉब, उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, अगर आप फ्रेश लोग अचीव कर लेना डायरेक्टली उसको आप जॉब, फ्रेश लोग अगर आप हायर कर ले उसको डायरेक्टली आप जॉब के लिए नहीं, जॉब पे नहीं लगा सकते, उनको आपने 1-2 मंथ की ट्रेनिंग देनी होगी। सो इंटरव्यूइंग एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, अपग्रेडिंग देयर स्किल्स, ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज, ये स्टॉपिंग में आ जाता है। फिर ठीक है, उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी सिलेक्शन। सो स्टॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक एक्टिविटी के लिए आपको लोग चाहिए तो उसको आप किस तरह हायर करेंगे, ये स्टॉपिंग में आ जाता है। स्टॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस। ठीक है, राइट जगह पे, राइट टाइम पे और राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को सेलेक्ट करना, ये स्टॉपिंग में आ जाता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, दैट इज लीडिंग। ठीक है, मीन मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजर जो होते हैं ये इन बिटवीन होते हैं, बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द रियल एग्जीक्यूटर्स। जो लेबर लगे हुए हैं, टेक्निकल लोग लगे हुए हैं, उनके बीच में कौन होंगे, मैनेजर्स होंगे। मैनेजर विल कन्वे, दे विल कम्युनिकेट द मैसेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द लेबर्स। ठीक है, और जो मेंबर्स होंगे मैनेजमेंट के,
उनकी कोचिंग करना, उनकी इंकरेजमेंट करना, उनकी सपोर्टिंग करना, उनकी प्रेजिंग करना, उनको रिवॉर्ड देना, ये भी लीडिंग की क्वालिटीज में आ जाते हैं। ठीक है, कि आप एक बिल्डिंग दी एम्प्लॉय एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड दी लीडिंग। ठीक है, लीडिंग में क्या है कि आप लोगों को प्रॉपरली डायरेक्ट कर लें अबाउट देयर जॉब, अबाउट देयर एक्टिविटी, अबाउट देयर वर्क, influencing and motivating the employees to perform the essential task। इन जो काम वो कर रहे हैं ना, उनको आप मोटिवेट कर लें, उनको आप इन्फ्लुएंस कर लें, उनको आप डायरेक्ट कर लें। दिस फंक्शन इन्वॉल्व दी, इसमें फिर लीडरशिप क्वालिटीज आ जाते हैं ना, जो अगर आपने देखे हुए है किसी मैनेजमेंट को, मैनेजर को जब हायर करते तो उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं, प्लानिंग क्वालिटीज देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटी देखते हैं। ठीक है, सो लीडिंग में क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडरशिप स्टाइल्स होनी चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग पावर्स होनी चाहिए, एबिलिटीज ऑफ एक्सेलेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एंड मोटिवेशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो है दैट इज कंट्रोलिंग। अगेन वी हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अच्छा, आपने प्लानिंग भी कर दी, ऑर्गेनाइजिंग भी कर दी, स्टॉपिंग भी कर दी, आपकी लीडिंग भी बेस्ट है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते रिसोर्स को, बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स को, ऑब्जेक्टिव जो है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, सो कंट्रोलिंग इज द ऑब्जर्विंग एंड मॉनिटरिंग द वर्कर परफॉर्मेंस, या इंश्योरिंग दैट द वर्कर इज फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, या दे आर वर्किंग अंडर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, या आल्सो कंपेयरिंग द एक्चुअल वर्क विद द प्लेन वर्क, कि आपने जो प्लेन किया हुआ है ना और जो एक्चुअली जॉब हो रहे हैं, एक काम हो रहे हैं, उसकी कंपैरिजन को, इसको भी कंट्रोलिंग कहते हैं। या कंट्रोलिंग जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग टू इंश्योर दैट द प्लान परफॉर्मेंस इज एक्चुअली अचीव्ड, कि आपने जो प्लान किया हुआ है वो एक्चुअली अचीव हो रहे हैं, तो ये कंट्रोलिंग में आ जाते हैं। ठीक है, इंश्योरिंग दैट द एक्चुअल एक्टिविटी कंफर्म्स टू द planned activity, या monitoring the financial statement, checking the quality। ठीक है, that is called controlling। so remember, ये 5 functions होते हैं managers की, या managerial functions होते हैं। इसको मैनेजमेंट में ये 5 चीजें होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, क्लियर हो गई मैनेजमेंट के फंक्शन? यस सर। आप भी कुछ बताएं ना, बीच में कुछ शेयर कर ले अगर आपके पास कोई आइडिया है या नॉलेज है अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, सो मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉपिंग, कंट्रोलिंग एंड आल्सो इवॉल्वेटिंग, कि आपको किस तरह पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपरली अचीव हुआ है। ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस होते हैं। नाउ वी हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वो तो फंक्शंस हो गए कि मैनेजमेंट में आपने ये करना है, लेकिन मैनेजमेंट की कुछ उसूल भी हैं कि उसको आपने फॉलो करना होगा। ठीक है, सो हेनरी इन 1841, ये उसका ड्यूरेशन है, ही हैज प्रपोज्ड दैट देयर आर 6 प्राइमरी फंक्शन which we have discussed। हमने तो 5 डिस्कस की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉपिंग और ये जो हमने डिस्कस की, लेकिन हेनरी हैव proposed the 6 function: forecasting, mean predicting about the future activity, then planning about that activity which we have discussed in detail, then organizing, okay, then commanding or leading, coordinating and controlling. These are the primary function of management. And also Henry has proposed the 14 principles of management. Okay, and if you are following these principles,
then you will have best management. ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी मुराद. सर ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या फर्क है, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल? सी प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है ना मैनेजमेंट का. उसमें आपने प्लान करना है कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है, ये डिफाइन करने हैं स्टार्ट में. कंट्रोलिंग ये है कि आपने ये देखना है कि द थिंग विच यू हैव डिसाइडेड इन द प्लानिंग स्टेज. अब कंट्रोलिंग जो है ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन होगा. जो अब काम हो रहा है ना, तो अब ने ये देखना है कि हमने जो प्लान किया था वो ठीक यहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा. एक्चुअल एक्टिविटी और प्लान एक्टिविटी को आपने कंपेयर करना है, इसको कंट्रोलिंग कहते हैं. ठीक है. ओके सर, ओके, अच्छा. थैंक यू. So now we have the 14 principles of management. If you are properly following these principles, तो you will be best manager. ठीक है. So first जो principle है that is division of labor. मैनेजर का क्या जॉब क्या होगा, प्रिंसिपल उसने क्या फॉलो करना है. राइट पीपल को राइट जगह पे यूटिलाइज करना. ठीक है. वर्क ऑफ ऑल काइंड मस्ट बी डिवाइडेड and then subdivided, and it will be allotted to various person according to their expertise and their particular areas. ठीक है. जो जिस एक्टिविटी का मैनेजर होगा ना, वो उस एक्टिविटी को डिवाइड करेगा टास्क में, सब टास्क में, सब एक्टिविटीज में. फिर अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज एंड द particular areas of a specific person, the activity or the work will be allotted. तो इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. ये फर्स्ट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का. सेकंड प्रिंसिपल जो है दैट इज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. कि अगर आपने किसी बंदे को एक जॉब के लिए सेलेक्ट कर दिया ना, फिर उसको अथॉरिटी दे दे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, तभी वो अपना काम प्रॉपरली करेगा ना. अगर बीच में फिर भी आप उससे बात करते हो, उससे अथॉरिटी नहीं देते, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे, वो प्रॉपर काम नहीं करता. वो क्या कहते हैं यार, ये मैनेजर जो थे यहाँ में काम क्या कहते हैं उस पख्तो के मंगवायु चिदा मुंकार तनपरी दी. इस तरह होता है ना. अगर आप किसी वर्कर को प्रॉपरली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें, वो फिर प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगा. सो अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ सुपीरियर्स to get exactness from the subordinates. ठीक है. Responsibility mean obligation for the performance of the job assigned. आपने जिसको जॉब असाइन किया हुआ है ना, अब उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, उसको अथॉरिटी दे दे. ठीक है. तो एक बंदे में रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी, जब आप उसको अथॉरिटी दे दे. अगर आप उसको अथॉरिटी नहीं देते ना, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. रिमेंबर. ठीक है. तो आप किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसको अथॉरिटी भी दे दें, देन ही विल बी और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्टिविटी. थर्ड प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है. दी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जो लोअर लोग होते हैं, लोअर लोग इन टर्म ऑफ एक्टिविटी में, जो एक टेक्निकल बंदा होगा सपोज, फिर उसके अंडर लेबर्स हैं. सो अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन बॉस एट अ टाइम. रिमेंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड. सपोज अगर एक लेबर काम कर रहे हैं ना, तो वो अपने टेक्नीशियन के अंडर होगा. सपोज अगर एक लेबर है, वो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रीशियन के अंडर होगा. इस तरह नहीं है कि बीच में मैकेनिक आ जाए और इलेक्ट्रिसिटी के लेबर को कह दे कि आप इस तरह कर लें और उस तरह कर लें. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यह है that a person will accountable to one and only one boss. उसका एक बॉस होगा एट अ टाइम. अगर हर बंदा आ जाए और लेबर को कह दे कि आप इस तरह कर ले, उस तरह कर ले, इस तरह कर ले, तो फिर वो लेबर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकता. ठीक है. मीन अ पर्सन इन एन एक्टिविटी
should not receive instruction from more than one person. इसको यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं. फोर्थ प्रिंसिपल जो है इट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व है ना, उनका डायरेक्शन सेम होगा, उनका प्लान सेम होगा, उनकी एक्टिविटी सेम होगी, उनकी ऑब्जेक्टिव सेम होगी. मीन अगर एक एक्टिविटी है उसमें डिफरेंट पीपल इन्वॉल्व है, so the people engaged in the same kind of activity must have the same objective. उस एक्टिविटी का भी एक ऑब्जेक्टिव होगा ना. Without the unity of direction, unity of action cannot be achieved. अगर एक डायरेक्शन ना हो तो फिर वो उसका एक्शन एक नहीं हो सकता, तो फिर वो एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर नहीं होगी. So that is the fourth principle of management, that there will be unity of direction, unity of command, there will be authority and responsibility, division of labor. Fourth principle, it is equity. Most important. Equity mean kindness, fairness, justice among the employees. मैनेजर के अंडर जो लोग होते हैं ना, उनके साथ इक्विटी होनी चाहिए. The employee should be treated with kindness and equity. अगर आपने उनसे बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना है ना, तो आप एम्प्लॉयज के साथ काइंडनेस के साथ रहे. ज्यादा फ्री भी नहीं होना है, ठीक है, आपने लेवल रखना है ना. ज्यादा फ्री भी नहीं होना है कि फिर आप वो लोग जो है अक्सर फिर वो बॉस के बात नहीं मानते अगर आप ज्यादा फ्री हो जाए. इतना भी नहीं करना, लेकिन इतना सख्त भी नहीं होना कि वो काम ना करे. इक्विटी, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी. इक्वालिटी में देखें ना, हर एक को एक एक मिला हुआ है. अगेन ये छोटा जो है ये नहीं देख सकता मैच को. अब ये देखें, इसको एक दे दे, इसको दो दे दे, तो तीनों जो हैं वो प्रॉपरली और इनजस्टिस, ठीक है, तीनों जो है वो फेयरनेस और काइंडनेस पे आपने डील कर दी. इसको इक्विटी कहते हैं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है. ठीक है, समझ आ रहे हैं प्रिंसिपल्स? यस सर. यस सर. नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज ऑर्डर. ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल. मीन जो भी काम आप कर रहे हैं ना, उसको सिस्टमेटिक मैनर से कर दे, उसको अरेंजमेंट मेथड से कर दे कि मटेरियल जो है प्रॉपरली आप प्लेस कर ले. ठीक है, दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द सोशल ऑर्डर. Arrangement of things is called the material order and the placement of people is called the social order. हम जो कह रहे हैं ना, to do the right work at the right place by right people. इन right लोगों को आप right job के लिए place कर ले, इसको order कहते हैं. हर चीज को नॉर्मली जनरली अगर हम कहते हैं ना, अगर हर चीज को आप प्रॉपरली अपने अपने प्लेस पे रखें तो हम कह देंगे कि ये चीज ऑर्डर पे है. पेजेस को जब आप 1 2 3 वाइज प्रॉपरली करते होंगे, देखिए ये पेजेस ऑर्डर पे है. सो सिमिलरली अगर वर्कर्स को आप अपने राइट जॉब पे लगाएं तो ये ऑर्डर होगा. एक वो ऑर्डर है ना, आप किसी को हुक्म देते हो, नहीं है, ये ऑर्डर है. ठीक है, सेवन प्रिंसिपल जो है दैट इज द डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन सिंसियरिटी, ओबीडियंस, रेस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी. मीन अगर आप किसी को अथॉरिटी दे दें, वो उसको मिस यूज ना करें. समझ आ रहे हैं ना? रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना. ठीक है, मतलब ये कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, लोअर लेवल के लोग होते हैं, दे मस्ट या दे शुड रिस्पेक्ट देयर सुपीरियर्स. ठीक है, सो इसको डिसिप्लिन कहते हैं. तो अब डिसिप्लिन को इंप्लीमेंट करना दैट इज द जॉब ऑफ द मैनेजर्स. दैट्स व्हाई इट इज प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट. नेक्स्ट जो है दैट इज इनिशिएटिव, फर्स्ट स्टेप. ठीक है, इनिशिएटिव मीन टू स्टार्ट द एक्शन विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो. मीन अगर आप पूछते हैं कि हम क्या करें, क्या करने के बजाय आपने स्टेप लेना है. मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर, टू द लेबर, टू द एम्प्लॉयज टू suggest their idea, experience and new methods.
ठीक है, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, जो लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको आप अपॉर्चुनिटी दे दें कि वो अपनी आइडियाज को, एक्सपीरियंस को और न्यू मेथड्स को शेयर कर सके। इसको इनिशिएशन कहते हैं। रिम्यूनरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है ना, काम कब जो है बेस्ट होगा, गोल कब इफेक्टिव एंड इफिशिएंट होगा, जब आप लोगों को प्रॉपरली सैलरी दे। अगर वो कोई अच्छा काम करे, आप उनको रिवॉर्ड दे दे, उनको रिम्यूनरेशन दे दे, उनको पैसे टाइम पे दे दे, सेटिस्फैक्टरी दे दे, रिवॉर्ड दे दे, so it will increase the eagerness of the employees for the work. It should accord the satisfaction to both the employer and employees. ठीक है, रिम्यूनरेशन मीन रिवॉर्ड, कि जो बंदा अच्छा काम करे उसको आप रिवॉर्ड दे दें, टाइम पे आप लेबर्स को, वर्कर्स को उनकी सैलरीज दे दें। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ट अचीव होगा, फिर लोग दिल से काम करेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेनेवर। सिमिलरली आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना कि अक्सर जो टेम्पररी जॉब्स होते हैं उसमें एम्प्लॉइज काम नहीं करते, कहते हैं वैसे ये एक साल में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, हमने क्या करना है, हमने क्या इसमें फ्यूचर लगाना है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉइज को फ्यूचर अपना नजर आ रहा हो तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर काम करेगा। फिर दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एम्प्लॉइज शुड नॉट बी मूव्ड फ्रीक्वेंटली फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर। एक मंथ वो यहां पे काम करे, फिर दूसरे मंथ आप दूसरी साइट पे भेज दे, तीसरी साइट पे भेज दे, फिर वो दिल से काम नहीं करते। स्केलर चेन मीन दैट इज द चेन ऑफ सुपीरियर ranging from the authority to the lowest, मीन हायर लेवल से लोअर लेवल तक अथॉरिटी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको स्केलर चेन कहते हैं। जिस तरह सपोज अगर एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर्स है, फिर डीन्स हैं, फिर चेयरमैन्स हैं, फिर टीचर्स हैं, इसको चेन कहते हैं ना, कि अथॉरिटी जो है किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेन नाउ। ठीक है, मीन सपोज अगर डिफरेंट लेवल है ना, ओनर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर सब एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर टॉप मैनेजमेंट है, फिर मिडिल मैनेजमेंट है, फिर लोअर मैनेजमेंट है, फिर लेबर्स है। अब लेबर जो है वो डायरेक्टली ओनर के साथ बात नहीं कर सकता, डायरेक्टली उससे इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकता। लेबर शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लोअर मैनेजर, लोअर मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मिडिल मैनेजर, middle manager will be responsible to top manager, top manager will be responsible to sub administrator, sub administrator will be responsible to administrator। इसको चेन कहते हैं, कम्युनिकेशन इन चेन। ठीक है, 12th प्रिंसिपल जो है that is subordination of individual interest to common goal। मीन हर एक पर्सन जो है उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनके माइंड में क्या होगा, वो सिंगल गोल होगा, कॉमन गोल होगा। सपोज हमारी यूनिवर्सिटी की गोल क्या है, टू प्रोड्यूस द ग्रेजुएट, ये गोल है ना। तो अब उसमें अगर क्लर्क है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें अगर टीचर्स हैं, उसमें चेयरमैन्स हैं, जो भी लेवल के लोग हैं, उनका माइंड कहां पे फोकस है, इंजीनियर्स प्रोड्यूस करना, ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करना। That is the interest to common goal। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी को पता ही ना हो कि हम क्या कर रहे, तो वो क्या काम करेगा, फिर उसका मैनेजमेंट क्या होगा, उसका काम ही क्या होगा। तो हर एक को ये पता होना चाहिए कॉमन गोल के बारे में। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये एक बिगर सिस्टम होता है एक इंडिविजुअल पर्सन से। सो द इंडिविजुअल पर्सन मस्ट नो अबाउट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 13th प्रिंसिपल जो है that is spirit decops, mean it refers to the team spirit, harmony in the work, कि ग्रुप में लोग काम करें ना। अगेन इंडिविजुअल अगर उसमें बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, उनकी को बीच में कोई ग्रुपिंग ना हो, तो अगेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपरली अचीव नहीं होगा। एंड लास्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज द
centralization. Centralization refers to the center of the decision. ठीक है, कि सारे पीपल जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक सेंटर को रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको जवाबदेह होंगे. सपोज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक सपोज अगर एक रूल है, तो वो रूल जो है, अब सब लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर लेबर तक सब उस रूल्स के अंडर होंगे. इसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. अगर मीन कोई भी बंदा जो है वो किसी रूल से ऊपर नहीं होगा. सेंट्रलाइजेशन refer to the degree to which subordinates are involved in decision making. या इस तरह भी हो सकता है. एक दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम ले ले सेंट्रलाइजेशन की, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो आपने सब लोगों से आइडिया लेना होगा. इसको भी सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. समझ आ रहे हैं? सपोज अगर एक प्रॉब्लम आ गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस तरह नहीं है कि वो जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको सॉल्व कर ले. नो, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, लोअर मैनेजर, फील्ड मैनेजर, टेक्नीशियन एंड लेबर सबसे आइडिया ले लें प्रॉब्लम के बारे में, रूल के बारे में. तो इसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. सो जी सर जी सर, एक सेंट्रलाइजेशन होते हैं ना सर, और एक होता है एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रलाइज्ड प्रॉपर्टीज के क्या फर्क होते हैं? सेंट्रलाइज्ड प्रॉपर्टी अगर आप कहते तो वो तो अगर इसको हम कहते हैं मेन ऑफिस हो सकता है. अगेन सपोज अगर जिस तरह सिंपल एग्जांपल अगर हम यूटी के ले लें ना, तो यूटी के सब कैंपसेस है, तो उसका सेंट्रल ऑफिस या सेंट्रलाइज्ड ऑफिस मेन कैंपस है. सब लोग जो है यहाँ से डील होते हैं. और सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे जो है मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, ये एक अलग चीज है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई सिंपलेस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप सब लोगों को इन्वॉल्व कर ले. इसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. ठीक है सर, मतलब सेंट्रलाइज्ड प्रॉपर्टी का ये भी मतलब होता है ना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं वो इसको मतलब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. हाँ, उसको ओन कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से डील ले सकते हैं. वो सेंट्रलाइज्ड प्रॉपर्टी होगा. ठीक है, वो भी सेंट्रलाइजेशन में आ जाता है. अगर यूटी एक सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी है ना, मतलब सर, तो इसमें हर डिपार्टमेंट की चीजों को मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हमारे अपने मतलब लैब वगैरह में हम कर सकते हैं. हाँ, वो फिर इंडिविजुअल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं. तो सी अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट एक्टिविटी है, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटी है प्रोजेक्ट में. अब सपोज अगर एक इक्विपमेंट है, वो मैकेनिक भी यूज कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन भी यूज कर सकते हैं, वो मेसन और लेबर भी यूज कर सकते हैं. तो वो सेंट्रलाइज्ड प्रॉपर्टी होगी. उस बेस पे वो सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट होगा, वो सब यूज कर सकते हैं. ये तो जाहिर बात है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी सारी इक्विपमेंट या उसकी जो सारी रिसोर्सेज हैं वो हर एक एक्टिविटी में यूटिलाइज हो सकते हैं. ठीक है, वो सेंट्रलाइज प्रॉपर्टी. लेकिन यहाँ पे जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल जो है सेंट्रलाइजेशन, वो ये है कि अगर एक डिसीजन है, अगर एक मसला है, तो उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो फिर आपका मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट होगा. इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में लोअर लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, तो फिर वो उसमें शिकार हो जाते हैं. क्या कहते हैं, इंपीरियरिटी कहते हैं कि क्या कहते हैं, एहसास कमतरी होता है. हाँ, तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं होते ना, तो आपका एक्टिविटी जो है, आपका प्रोजेक्ट जो है, वो इफेक्टिव और इफिशिएंट नहीं होगा. आप अपने माइंड में मैनेजमेंट की डिफिनीशन को रख के इन प्रिंसिपल्स को फिर रिवाइज कर ले, तो फिर आपको क्लियर हो जाएंगे कि एज अ मैनेजर आपको कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है कि आप जो है एज अ बेस्ट मैनेजर कॉल हो सके. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर हो गई यहाँ तक? सर ये 13 नंबर जरा दोबारा बताएं सर. जी, स्पिरिट ये जो डिकॉप्स ये 13 है, मतलब ये है कि मीन वर्किंग इन ग्रुप्स या वर्किंग विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग
among the members, मीन अगर लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग ना हो ना कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो फिर वो उसमें वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। मीन हर एक बंदा को पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। इन आइदर वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल और नॉट। स्पिरिट डी कॉर्प्स जो है दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द मेंबर्स। ठीक है, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समझ आ रहा है? यस सर, थैंक यू। अच्छा, सो हमने ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को डिस्कस की। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एज वी हैव डिस्कस कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका और एक मैनेजमेंट होगा। ठीक है, दो लेवल है। तो सी एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होते हैं? दे आर द गोल ओरिएंटेड। ये पर्पसिव एंड कोऑपरेटिव ग्रुप होता है और ये क्या करते हैं? दे आर अकम्प्लिशिंग द गोल्स, दे आर मेकिंग द पॉलिसीज, दे आर डिसाइडिंग अबाउट द रिसोर्सेज। ठीक है, टॉप लेवल के लोग होते हैं जनरली। अगर आप लोगों ने सुने हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, या अगर पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेशंस कहते हैं जनरली। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज अगर हमारी एक कंट्री है तो कंट्री के सपोज अगर हम ले लें प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ हैं, ठीक है, और उसकी जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर। अब उनकी अंडर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इदारे होते हैं, वो प्रैक्टिकल अपना काम कर रहा है ना, अंडर द पॉलिसी, अंडर द प्रिंसिपल्स, अंडर द गोल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो वो फिर मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं? पॉलिसी बनाते हैं, गोल्स डिसाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि मैनेजर्स क्या करते हैं, गोल को अचीव करते हैं कि नहीं करते, वो ऊपर से जस्ट देखते हैं फिर। ठीक है, just make the difference between administration and management. Administrative activity is as old as organized social life. ठीक है, जब से सोशल लाइफ जो है ऑर्गेनाइज्ड हुए वही से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। आप देखें ना, घर में भी एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है होम में। ठीक है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जो बाप होते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना घर का, वो पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, सो इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस व्हिच इज कैरिड ऑन इन अ वैरायटी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मीन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। जिस तरह सपोज अगर हम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के ले लें तो हमारे प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है, उनके कैबिनेट मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? ओनर होगा, जो मालिक होता है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिन होता है। ठीक है, तो अगेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, उसका एक पर्पस होता है एंड दे आर डिसाइडिंग अबाउट द मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जिस तरह हमने डिस्कस की ना, दे आर डिसाइडिंग अबाउट द रिसोर्सेज एंड बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज दे आर सेटिंग द गोल्स, दे आर डिफाइनिंग द गोल्स, दे आर मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, एंड अगेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक हायरार्की उसको हम कहते हैं ना, एक अगेन इसमें लेवल्स होते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि सपोज अगर एक कंट्री लेवल पे आप ले लें तो टॉप पे कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर उसके साथ कौन होते हैं? नियरेस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं। फिर उन मिनिस्ट्रीज के साथ क्या होते हैं? सेक्रेटरीज होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं। मीन ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हैं, लेकिन अगेन उनका टॉप पे एक ही बेटा होता है। So it is a process consisting of planning, organizing, budgeting, directing, coordinating and controlling. जिस तरह हमने मैनेजमेंट के फंक्शन में डिस्कस की ना, तो सेम फंक्शन कैन बी द फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस, that they are planning about the future, they are planning about the goals, they are setting the goals, they are organizing the resources, they are selecting the finance. जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की टॉप डाउन बजटिंग, तो टॉप एडमिनिस्ट्रेटर बजट डिसाइड करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, उसको कंट्रोलिंग करते हैं
तो एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करते हैं मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटर्स को। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट इज अकर्ड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ हायरार्ची, मीन अरेंजमेंट्स में होते हैं ना, बेस्ड ऑन पोजीशन। टॉप लेवल की सपोज वाइस चांसलर हैं, डीन्स हैं, चेयरमैन्स हैं, ये तीनों स्टेजेस जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, बिकॉज दे आर मेकिंग द पॉलिसी, दे आर टेकिंग द डिसीजंस। ठीक है, उसमें ऑर्डर्स होते हैं, उसमें पोजीशंस होते हैं, सुपेरियरिटी होती है। जिस तरह हमने डिस्कस की कि हमारे पास दो टाइप्स के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं और एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। सो अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो स्टेट की पर्पस को अचीव करते हैं, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वो अपनी बिजनेस की पर्पस को अचीव करते हैं। ठीक है, हर एक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं। आप लार्जर लेवल पे भी जा सकते हैं, लोअर लेवल पे भी जा सकते हैं। सपोज अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है आपके ख्याल में? जिले सतह पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा जी? डिप्टी कमिश्नर डीसी होते हैं होगा। ना जी। कमिश्नर होता है सर। अगर आप तहसील लेवल पे आ जाए तो तहसील का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? एसी होगा। ठीक है, तो आप इतना ना हो कि आपके ओवरऑल एक ही एडमिनिस्ट्रेटर होगा। हर एक लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उसके अंडर मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट के अंडर वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक हमने प्राइवेट की पब्लिक की बात की ना, सिमिलरली प्राइवेट की भी होते हैं। ठीक है, और ये जो है डिफरेंस है बिटवीन दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं? दे आर डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज। मैनेजमेंट क्या करते हैं? दे आर इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं? दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटीज, वो प्रैक्टिकल वर्क में इन्वॉल्व नहीं होते। मैनेजमेंट जो होते हैं वो प्रैक्टिकल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब क्या है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, और मैनेजमेंट का जॉब क्या है? डायरेक्शन, मोटिवेशन एंड कंट्रोल। उसकी भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग है, लेकिन लोअर लेवल पे है। अब मैनेजमेंट को कौन हायर करेगा, मैनेजमेंट को कौन ऑर्गेनाइज करेगा? दैट इज द जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये तीन स्टेप इसमें भी है और इसमें भी है, इसके साथ कंफ्यूज ना हो जाए। ये टॉप लेवल की एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जो लोअर लेवल की एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजर, सुपरवाइजर्स, इनका पोजीशन क्या होते हैं? इज अ प्रिंसिपल। इनका पोजीशन क्या होता है? इज एन एजेंसी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा कौन सा नॉलेज रिक्वायर्ड होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज रिक्वायर्ड होगा। उनको टेक्निकल नॉलेज का पता नहीं होता, और मैनेजर के पास टेक्निकल एबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, ये मैनेजमेंट के पास ज्यादा होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर के पास पॉलिसी मेकिंग की स्किल्स ज्यादा होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अच्छा, वी हैव जस्ट सम प्रिंसिपल, 5-6 प्रिंसिपल है, उसको डिस्कस करते हैं फिर खत्म हो जाएगा कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन की कौन से प्रिंसिपल्स है। ठीक है, व्हेन यू विल बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अगर सपोज आप खुद एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उस बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटर है ना, तो आपके पास ये प्रिंसिपल होनी चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इट इज गेटिंग इट राइट। ठीक है, मीन एक्टिंग in accordance with the law and with regard for the rights of those concerned। मीन जो लोग इन्वॉल्व हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ देयर राइट्स।
या acting in accordance with the public body policy and guidance, taking proper account of established good practices. मीन अगर ऑलरेडी एक प्रैक्टिस जो है वो established है, so taking the proper account, taking reasonable decision based on all relevant consideration, मीन चीजों को ठीक करना. जो भी डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, डिसीजन मेकर्स होते हैं ना. सो टेकिंग द रीजनेबल डिसीजन मीन सारी कंसिडरेशंस को, रेलेवेंट कंसिडरेशन को माइंड में रख के रीजनेबल डिसीजंस करना, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकंड प्रिंसिपल जो है, दैट इज द बीइंग कस्टमर फोकस्ड. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो आपने कस्टमर को माइंड में रखना होगा. सॉरी, पॉलिसी जो है आप अपने आप के लिए नहीं बनाएंगे, अपने सेल्फ सेंटर नहीं होंगे. समझ आ रहे? इंश्योरिंग पीपल कैन एक्सेस सर्विसेज इजीली, प्रॉपरली, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट एंड व्हाट द पब्लिक बॉडी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. ठीक है, कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको माइंड में रखें. डीलिंग विद पीपल हेल्पफुली, सेंसिटिवली. ठीक है, और हर एक बंदी की जो सरकमस्टांसेस है वो अपने माइंड में रखना है. बिकॉज सारी पीपल जो होते हैं ना, अगर कस्टमर है या वर्कर्स हैं, सबकी सब का फोकस कहां पे होगा, एडमिनिस्ट्रेटर पे होता है. जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम कहां पे देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को देखते हैं कि वो क्या डिसाइड कर रहे हैं. सो द थिंग which the administrator is deciding, that will be, the administrator should be ensure the people, mean about the people. ठीक है. So first principle क्या था कि when the administrator is making the decision, their decisions will be reasonable. The administrator will be considered the relevant consideration. Second principle क्या है, the administrator will consider the people, the customer. Okay, he will be not, the administrator will be not self-centered. ठीक है. Third principle जो है, that is being open and accountable. Most important. Being open and clear about the policies and procedure, and ensuring that information and any advice which is provided is clear, accurate and complete. इन एडमिनिस्ट्रेटर जो भी चीज प्रोवाइड कर रहे वो हिडन नहीं होगा, वो क्लियर होगा, एक्यूरेट होगा, कंप्लीट होगा. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी ओपन अबाउट द पॉलिसीज. An administrator should be handling the information properly and appropriately. He will be, she will be, administrator will be taking responsibility for its action. ठीक है. जो भी काम वो करे ना, then administrator will take the responsibility. इस तरह नहीं है कि कोई काम करे और फिर वो कह दे कि ये वर्कर ने गलत किया है या इस तरह है उस तरह. और जो रूल्स होंगे, the administrator should also be responsible for that. फोर्थ प्रिंसिपल है, that is the acting fairly and proportionately. इस तरह नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर कुछ एम्प्लॉइज के साथ ज्यादा हेल्पफुल है और कुछ एम्प्लॉइज के साथ ज्यादा हेल्पफुल नहीं है. The administrator should treat the people equally with courtesy, with respect, because वो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं ना, उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसकी गोल को अचीव कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं. So the administrator should be treating people without unlawful discrimination. Okay? Administrator will deal with people and issue objectively and consistently. ठीक है? And also he will or she will ensure that the decisions and actions are proportionate, appropriate and fair in terms of subordinates, employees and customers. Fifth principle जो है, it is putting things right. ठीक है. अगर एडमिनिस्ट्रेटर खुद ठीक काम नहीं कर रहा तो फिर लोअर लोग क्या काम करेंगे. ठीक.
अगर एडमिनिस्ट्रेटर खुद जो है मिस्टेक्स कर रहे हैं और फिर अपॉलॉजी नहीं करते, सो लोअर लोग क्या करते हैं, वो अपने बॉस को फॉलो करते हैं ना। तो द एडमिनिस्ट्रेटर should putting things right. Administrator will acknowledge his mistakes and apologize for it. Okay? अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको ठीक करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको फिर इफेक्टिवली और क्विकली राइट करना, that is the principle of good administrator. Operating an effective complaint procedure हो, ठीक है। लास्ट प्रिंसिपल जो है, that is seeking continuous improvement. मीन अगर एक पॉलिसी कर देना, इस तरह नहीं है कि वो उस पे स्टिक हो जाए कि बस ये तो हर पे आखिर है, नहीं। रिव्यूइंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रेगुलरली टू इंश्योर दे आर इफेक्टिव। मीन अगर एक पॉलिसी बनाई ना, उसको फिर बार बार आपने इंप्रूव करना होगा, उसको रिवाइज करना होगा रेगुलरली, एंड आल्सो आस्किंग फॉर फीडबैक फ्रॉम द लोअर स्टॉप, उससे अपनी फीडबैक लेना होगा। इंश्योरिंग दैट द public body learn lesson from complaints and uses these to improve services and performance. मीन एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट के बारे में सोचेगा, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द पॉलिसी, अबाउट द पीपल, अबाउट द कस्टमर, अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये 6 प्रिंसिपल हैं एडमिनिस्ट्रेटर की। क्लियर हो गए? जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? Yes, sir. So we have just introduced the organization. We have discussed the management, the function of management, the principle of management, and also we have discussed the administration and the principle of administration. ठीक है?